Good morning, students. Today we will learn about the Paint software. As you already know about the Paint software from your class 1, yes? From class 1 only you are doing the painting and coloring in computer. Okay. So today we will learn various advanced options in MS Paint. Okay, that is how to move the selected area, resizing option, skew option, rotating and flipping, copy and paste, cut and paste, cropping the image, color picker tool, zoom in and out, ruler guideline grid lines and full screen, saving drawing in different file formats. So we will see all this portion properly. Okay. So for the first is, what is MS Paint? So it is a drawing and coloring program in which you can make beautiful shapes, you can draw beautiful shapes and you can make your drawing. Okay. So let us start about let us start MS Paint. You can start MS Paint just clicking on start button, and in the start button you can just here type MS Paint in the search box. MS Paint. So Paint software it will come. Just click on it. When you click on this Paint, the Paint software will open in this way. So you can see this is called as the Paint window. So here the first one is this bar. This bar it is called as title bar, where it is written your file name, that is untitled, and the software name is Paint. Okay, and this particular thing, okay, this particular thing is called as quick access toolbar, this one. And these are the control buttons where you can use this minus button. If you click on this minus button, the complete this paint software will come to the taskbar, and this is restore and this is close button. Okay, so these are the different buttons, right? Then this is the tabs, home tab and view tab. There are two important tabs in the MS Paint, home tab and view tab. Okay, then after this, when you click on the home tab, this options will open. So this options, it is the base for drawing. Means you can draw the shapes from here. You can use the tools, okay, for coloring or for writing the text, for color picking. So these are the tools option, and these are the different option for the image. Means you can select the image, you can resize the image. This is the color box, and this is the actually color 1 and color 2. Color 1 is for the foreground, okay, and color 2 is the background. So by default the color 1 is black, and by default the color 2 is white. Now you can just check it how it is used. Okay, suppose I am making here one shape called as circle. Okay, so in this circle, see, when I draw the circle, it is coming in the black color, right? Suppose if I do color 1 is red, now the color changes to the red option. Okay, and if you fill the color also, then also it will come in the red color. And the color 2, suppose I am erasing the things. Okay, so when I erase the things, it is coming in the white because the background color is white. So whatever when I remove, so it is coming in the white color. Suppose you are changing the background color, means the color 2. Suppose it is now blue. So when you use the rubber, it will come in the blue color like this. Okay. So I think you understood the difference between the color 1 and color 2. So color 1 is the foreground color and color 2 is the background color. So your eraser will become the blue color by using this option. Okay. So let us again select the color 1. Okay, then only you can draw the all the things. Now the next option, select option.
how to select this particular ball. So just click on this select option, select here in this way. Now the whole ball is selected. After selection, you can move. Whenever you click on this and you hover your mouse on this particular area, then you will get a button like that, 4 arrows. Now click and drag it. Okay, now you can see here your ball is changed from one place to another. So it is called as moving. And the background color, because of this blue color, it is coming as in this way. Okay. So let me change first. Control Z. Control Z is used to cancel the last action. मान लो आपने कुछ किया और आपको पसंद नहीं आया, तो उसे वापस ले जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हो. क्या दबा सकते हो? कंट्रोल प्लस जेड. ओके, इन दिस वे. तो वो प्रोसेस अंडू हो जाती है, मतलब लास्ट कमांड जो होता है वो कैंसिल हो जाता है. तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दिस कलर 2 let me select the white color. Now it is okay. Again select the color 1. Now you select this image again by using the selection. Just click and drag. The whole area is selected. Now you can easily move. आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को आराम से बीच से क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हो. ओके, लाइक दिस. सो दिस पिक्चर कैन बी मूव्ड एनीवेयर. ओके, in this way. I think you understood well this one. The next thing what you have to do, see the options. I have just used this option, starting paint, and about the paint window I explain you. The next one, select option, I told you this one, and how to move the selected area, that also I told you. Now let us see the resize option. Suppose I am selecting this one. Now you want to make its size little bit big. Then what you will do, just go to the option resize. Can you see this option? Let me zoom this one. So here is the resize option. Just below the crop option, there is resize option. So here resize, click. Now it is here, it is saying in the percentage, how much percentage you want to increase, okay, this particular picture. So I want that, I want double of it. So just make it here horizontal 200 and vertical also 200. So just click on OK. So see, now the picture is very big, right? So in this way we can increase the size, we can resize the particular picture. But इसके लिए आपको select करना जरूरी है ना? अगर जब तक आप इसको select नहीं करोगे तो वो resize नहीं होगा. So first you have to select it. After selection, you click on this resize button. Okay, then you can increase or decrease. Suppose I want to decrease it, so let me give 50. Just click on OK. The photo will come smaller size. Okay, like this. So this is called as resize option. The next topic is skew option. Skew option actually drag the picture to the one side. Hana? So for this, I have one image for explaining this skew topic. The better option I have, let us cut this picture. I am opening one photo. Just go to the file open option. Again, I am telling you how you can open another image. So just go to file option. There is open option. Now select your picture. My picture that I want to select, this one, this frog. Click here, open. So this frog picture, it is coming. Let me big my screen, this one. Okay, so this frog, let me select this frog and just place the at the center. Okay, so now this frog is there. So what I will do, I will use the skew option. Now see how to it. Just select this particular frog photo, then go to the resize option. There is option called skew. So skew, just do it the horizontal skew. आप यहाँ पे देखना, skew पे मैं जैसे ही यहाँ पे 100 करता हूँ and click on OK. Sorry, you can just use the -89 to 89. Okay, let me show you. Suppose it is 30. तो देखो ये आपका फोटो कैसे स्क्यू हो गया.
एक साइड फिक्स होता है बट द अनदर साइड ये थोड़ा सी टेढ़ा हो जाएगा। स्क्यू का मतलब ही ये होता है एक साइड से फिक्स होगा एंड द अनदर साइड इट विल मूव। ओके, इट विल स्ट्रेच्ड। एक्चुअली स्क्यू का काम क्या होता है, फोटो को स्ट्रेच करना, मतलब खींचना। ठीक है, कोई भी चीज हम स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ी सी बड़ी हो जा, मतलब थोड़ा सी इधर उधर हो जाती है, वैसे ही है। अगेन गो टू द रिसाइज ऑप्शन। देयर इज अगेन स्क्यू, सपोज वर्टिकली स्क्यू। पहले तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल वापस से -50 कर देता हूं, क्योंकि मैंने पहले 50 किया था तो वैसे ही ये इस तरह से हो गया था। अब -50 करोगे तो ये हो गया, अच्छा ज्यादा हो गया, -30 करते हैं। रीसाइज, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल, अभी तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है चलो। अगेन लेट अस डू सेलेक्टेड रीसाइज एंड स्क्यू ऑप्शन, आप इसको -30 कर दो तो ये लेफ्ट साइड में बेंट हो जाएगा। देखो ये लेफ्ट साइड में बेंट हो गया, लाइक दिस। सो अगेन आई एम प्रेसिंग Ctrl plus Z, that is undo. So this is called as skew. Okay, in this way you can also use vertical skew, this one vertical. So let us see, suppose 30, तो देखो ये वर्टिकली इस साइड हो रहा है, राइट। वापस से मैं इसको नॉर्मल साइज पे चले जाता हूं, नॉर्मल शेप पे, Ctrl plus Z. So this is called as skew option. Now the next one is rotate and flip. What is rotate? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सी घुमाते हो अलग अलग एंगल पे, दैट इज कॉल्ड एज रोटेट। एंड फ्लिप, एक्चुअली फ्लिप ऑप्शन इट इज यूज्ड टू क्रिएट द मिरर इमेज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनानी है तो आप फ्लिप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकली देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट सेलेक्ट दिस पिक्चर एंड यूज द ऑप्शन हियर रोटेट। तो रोटेट के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, रोटेट राइट 90 डिग्री। तो देखो ये जो फ्रॉग है ये मूव हो गया। ये अगर और एक बार फिर से आप रोटेट 90 डिग्री करो, देखो ये वापस से आया। ठीक है, फिर अगर आपको मान लो रोटेट 180 डिग्री करना है तो ये देखो पूरा 180 डिग्री जस्ट अपोजिट आ गया ये। सो इन दिस वे वी कैन रोटेट इट। ओके, आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। देखो रोटेट लेफ्ट भी है और रोटेट राइट भी है। रोटेट राइट, एक बार और रोटेट राइट करेंगे तो ये इस तरह से कहीं पर भी किसी भी एंगल में आप कोई भी पिक्चर को मूव कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज रीसाइज, सॉरी फ्लिप ऑप्शन। नाउ सी हाउ द फ्लिप ऑप्शन इज वर्किंग। देखो अभी इसका जो फेस है वो ऊपर की ओर है, जैसे ही मैं फ्लिप वर्टिकल किया ये नीचे की तरह आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर से मुझे ऊपर लेना है तो फिर मैं फ्लिप वर्टिकल करता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज मिरर इमेज। ऐसे आप हॉरिजॉन्टल के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप फ्लिपिंग कर सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट एंड कट एंड पेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। सी, कॉपी एंड पेस्ट से आपकी डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल भी रहेगा और जो पेस्टेड आइटम है, जो नया आइटम आपने कॉपी किया है वो भी रहेगा। बट कट एंड पेस्ट में क्या होगा, एक प्लेस से हट के दूसरे प्लेस में चले जाती है। ओके, मतलब कट एंड पेस्ट का काम है मूव करना और कॉपी पेस्ट का काम है एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। सो लेट अस सी हाउ टू डू इट। सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और अब इसको अगर कॉपी करना है आपको तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है क्लिप बोर्ड में कॉपी का। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो क्लिप बोर्ड में देयर इज ऑप्शन कॉल कट कॉपी पेस्ट। तो मुझे पहले कॉपी करना है तो मैंने इसमें कॉपी में क्लिक किया, देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन पेस्ट। तो देखो ये डबल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे, और एक बार कॉपी करने के बाद कितने बार भी आप पेस्ट करो इस टाइप के, और पिक्चर्स रेडी हो जाएंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल दिस थिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग, आई वांट टू मूव दिस फर्स्ट फ्रॉग टू दिस लोकेशन। तो सबसे पहले मैं इसको पहले यहां से कट करूंगा, तो सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट, देन क्लिक ऑन कट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन पेस्ट। तो देखो यहां से हट गया और यहां पे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज मूव ऑपरेशन। ओके, so I think these options are also clear. Now let us see what is crop image. अगर किसी पर्टिकुलर इमेज को आपको क्रॉप करना है, क्रॉप मतलब होता है कोई भी पार्ट को काटना, छोटा नहीं करना, कोई भी पार्ट को कट करना है। जैसे मान लो इस पर्टिकुलर ड्राइंग में ये पर्टिकुलर आपको ये बॉडी नहीं चाहिए, बस इसका फेस चाहिए,
तो आप इसमें क्रॉप में क्लिक करो, ये क्रॉप ऑप्शन है, CROP। ठीक है, तो देखो एक चीज आपने देखा, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था बस उतना ही रहेगा, बाकी का एरिया सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूं, ये फेस को, इस पूरी ड्राइंग में मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर क्रॉप बटन पे क्लिक किया, तो सिर्फ वो फेस बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। तो इस तरह से क्रॉप का यूज करते हैं, मतलब आपकी पिक्चर में जो अनडिजायर्ड है, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको आप कट करके बाकी जो चाहिए उसको रख सकते हो। तो जो चाहिए होता है, मान लो आपको ये सिर्फ 3 फोटोज ही चाहिए आपको, तो आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, देन जस्ट क्लिक ऑन क्रॉप बटन, ये वाला पिक्चर हट जाएगा, देखना, क्लिक ऑन क्रॉप, तो ये बस तीनों पिक्चर जो आपने सेलेक्ट किया था वही एरिया बस रहेगा, बाकी का एरिया जितना भी इमेजेस है वो सब चला जाएगा क्रॉप ऑप्शन से। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कलर पिकर टूल। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर चीज में, मान लो आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और आप चाहते हो कि जो इस पिक्चर में कलर है, जो येलो, इसी टाइप का कलर आप इसमें भरना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस कलर पिकर टूल। दिस इज कॉल्ड एज कलर पिकर, एक ड्रॉपर की तरह होता है। देखो, आप इसको क्लिक करो, फिर जो भी कलर चाहिए उसको यहाँ से क्लिक कर देना, तो वो कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर फिल विथ कलर से, इस बकेट से आप उसको सेम टू सेम ये कलर डाल सकते हो। तो ये कलर हमने यहां से नहीं उठाया है, हमने इस दूसरी ड्राइंग से कलर को उठाया है। सो द कलर पिकर टूल इज यूज्ड टू पिक द कलर फ्रॉम अदर ड्राइंग। सो दिस इज द यूज ऑफ कलर पिकर टूल। ओके, द नेक्स्ट वन इज जूम इन एंड जूम आउट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ जूम इन एंड जूम आउट? अगर ड्राइंग को आपको बड़ा करके या छोटा करके देखना हो, तो आप व्यू ऑप्शन में आना, व्यू टैब में, और यहाँ पे देखो जूम इन है, मतलब आप थोड़ा सी इमेज को बड़ा करके देख सकते हो। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको जूमिंग दिखा रहा हूँ, देखो एक फ्रॉक कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया। हाँ, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी तो आप ज्यादा जूम कर सकते हो, बट अगर पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो आपके जो फोटो है वो फटना चालू हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये होता है बिकॉज पिक्सल्स, यहाँ पे पिक्सल्स कम है इसके। तो लेट मी अगेन जूम आउट, जूम आउट से वापस से फोटो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, देखो कितना छोटा हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज जूम इन and this is called as zoom out. Both the options are available in the view tab. Okay. The next one is रूलर, ग्रिड लाइंस एंड फुल स्क्रीन। रूलर का बेटा यूज होता है कोई भी इमेज को आप देखने के लिए कितनी बड़ी है ना, तो ये आप रूलर्स को ऑप्शन को ऑन करना, तो आपको ये पता चलेगा ये क्या है, 500 पिक्सल्स इसका विड्थ है, और यहाँ से 500 पिक्सल्स कितना है ये, तो साइज को आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितने पिक्सल्स में है ये, तो ये आप रूलर से पता कर सकते हो। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रिड लाइंस? ग्रिड लाइंस एक्चुअली कोई अगर आपको ड्राइंग बनानी है और एग्जैक्ट पोजीशन पे बनानी है तो आपको ये यूज होगा ग्रिड लाइंस। मतलब देखो यहाँ पे बॉक्सेस बॉक्सेस हो जाते हैं, फिर आप पेंसिल लेके बहुत अच्छे से आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हो। कोई भी शेप बनाना हो तो आप इस पर्टिकुलर चीज में अच्छे से ड्राइंग, किस पर्टिकुलर एरिया पे कितनी ड्राइंग बनानी है, ये सब आप कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड लाइंस। एंड देन आफ्टर फुल स्क्रीन इज देयर, सपोज यू वांट टू सी, पहले तो मैं ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ, just off this grid lines. Now just click on full screen. So आप अपनी ड्राइंग को पूरी बड़ी स्क्रीन में देख सकते हो। देख लो पूरी स्क्रीन में मेरे को बस मेरी ड्राइंग ही दिख रही है, तो आप एस्केप बटन दबाना, ये वापस से हट जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द ऑप्शंस अबाउट द फुल स्क्रीन। नाउ द नेक्स्ट इज सेविंग ड्राइंग। आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हो, जस्ट गो टू द फाइल ऑप्शन, सेव, जस्ट गो टू द फाइल ऑप्शन, सेव, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ये फाइल डाउनलोड नाम से सेव है, मैं इसको सेव एस कर देता हूं। जब आप सेव एस करते हैं तो आपको अगेन फाइल का नाम देने देने पड़ते हैं, और नीचे में लिखा हुआ है देखो सेव एस टाइप। आप अपने पेंट फाइल को जेपीजी में सेव कर सकते हैं, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। यू कैन सेव योर फाइल इन पीएनजी और जेपीजी। सो आई विल सजेस्ट यू, यू कैन save the photo always in the jpg. So when it is selected in a JPG, then you can easily share your photographs. So just save this file by the name J. Any name you can give. You can also give your name. So this complete tutorial about the paint I have completed here. Okay. So you practice it.
and see the video again and again and do all the practice, copy and paste, cut and paste. Then after this, mirror image by using the flip option, then rotate the image also. So this option, ये सारे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और मुझे बताना कितना आप कर पा रहे हो. ओके, so this is the today's tutorial that you have to do it. Okay, thank you.